Good morning, friends. Now, our next topic is reaction with metals of haloarenes. In the series of reaction with metals, the first one is reaction with sodium. Okay, reaction with sodium Na. Na halide reacts with sodium similar to alkyl halide. It gives Woods reaction. Okay, but here it one is known as Fittig reaction. FITTIG, not FITTING, not fitting. That is a Fittig reaction. Clear? Now, what is Fittig reaction? When 2 moles of alkyl aryl halides, this one is and this one, when 2 moles of aryl halides are react with sodium piece, they form diphenyl. When two benzene rings are combined with a single bond, that one is known as diphenyl. Okay, diphenyl. The structure of diphenyl is this one. If you draw, the structure of diphenyl is this one, so that is a wrong structure. Between two phenyl groups, the single bond is there. Okay, that is a very big mistake, which one is done by maximum students in a board exam. Okay, so I remember you that a single bond is present between the two phenyl groups, so that is known as Fittig reaction. Next one is Woods-Fittig reaction. Again, reaction with sodium. In Woods-Fittig reaction, first one is aryl halide and second one is alkyl halide. If both are alkyl halides, that is a Woods reaction. If both are aryl halides, that is a Fittig reaction. If one is aryl halide and second one is alkyl halide, that is a Woods-Fittig reaction. Again, the NaCl, sodium chloride, is removed from here and it forms toluene. That means this and this CH3 are combined with each other to form the compound which one is known as toluene. Clear? That is a Woods-Fittig reaction. Reaction with copper metal. Same reaction, but the name reaction is next. Next name reaction is Ullmann reaction. That is known as Ullmann reaction. Woods reaction, Woods-Fittig reaction, Fittig reaction, and fourth one is Ullmann reaction. When both aryl halides are react with copper metal. Okay, that one is this copper metal, it form again diphenyl. Here is diphenyl is formed again, so which one is known as Ullmann reaction. Next is reaction with metal, magnesium. Okay, so when any aryl halide react with magnesium, it form Grignard reagent. That is a Grignard reagent, which one is known as RMGX. It may be ARMGX. So here benzene ring is there. If bromobenzene reacts with magnesium in the presence of dry ether, okay, it gives phenyl magnesium bromide. Okay, if RMGX, alkyl magnesium bromide, here phenyl magnesium bromide, phenyl magnesium iodide. If I is there, then phenyl magnesium iodide. Clear? THF, that is a very important chemical reagent. Okay, tetrahydrofurane. In the tetrahydrofurane is used to place of dry ether to form Grignard reagent from chlorobenzene. Okay, that is very important reaction. Which one is in the form of complete the following reaction in board exam? Chlorobenzene plus magnesium. Chlorobenzene plus magnesium in the presence of tetrahydrofurane, it gives again same compound phenyl magnesium chloride. But instead of dry ether, we used tetrahydrofurane only. So these are the reactions which an reaction with metals. Now second one is reduction reaction. Okay, chlorobenzene is reduced to benzene by nickel aluminium alloy in the presence of a base. किसी भी बेस की प्रेजेंस में लाइक NaOH और KOH की प्रेजेंस में, और निकल एल्यूमिनियम जो एलॉय होता है उसके साथ अगर रिएक्शन कराई जाए इसकी, यहाँ पर प्लस आएगा, दैट इज अ हाइड्रोजन. ओके, रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है हमको. तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम एलॉय, NaOH बेस की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन. HCl रिमूव हो जाएगा एंड क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कन्वर्जन. How can we convert chlorobenzene to benzene? So by the reduction method we can convert the chlorobenzene into benzene. Clear? Next reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद मेटल्स. नाउ दैट वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड. एक हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में SN और SN2 रिएक्शन. ओके, एंड दैट वन इज रिलेटेड टू एल्काइल हैलाइड, बट दैट इज एराइल हैलाइड. सबसे फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है ना, इसी का लास्ट ईयर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया है. एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन alkyl halide towards nucleophilic substitution reaction.
ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमें अगली लाइन में ये लिखा हुआ मिला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति एल्काइल हैलाइड्स जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ARX आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन CX बॉन्ड ड्यू टू द इजीली ब्रोकन। देखो मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि जैसे ये कंपाउंड बना हुआ है क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन की अगर ये कुछ रिएक्शंस दी हुई है, सम एग्जांपल्स ऑफ दीज रिएक्शंस, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, ये बहुत कम शो करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्लोरोबेंजीन जो है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब कराई न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, तो इसने एनिलीन का फॉर्मेशन किया। तो ये इस Cl को अपनी यहाँ से जगह से हटना है, लेकिन क्लोरीन और बेंजीन के बीच का जो ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जो ये प्रेजेंट है Cl और बेंजीन के बीच का, दैट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, ये इजीली टूटता नहीं है। अगर ये नहीं टूटेगा, ये देर से टूटेगा, तो Cl देर से बाहर निकलेगा, देर से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी? स्लो हो जाएगी। ओके, तो ये वाला जो कार्बन एटम है क्लोरोबेंजीन का, दिस कार्बन एटम, दैट वन इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन sp2 होता है। इस sp2 कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के होने के कारण Cl और बेंजीन के जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने से क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड अगर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और ये देर से टूटेगा। ठीक है, इस रीजन की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये इजीली शो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई जाए तो हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, हाई प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए। देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ लिखा हुआ है हाई प्रेशर, 475 केल्विन टेम्परेचर, और अमोनिया जैसे स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट को, यहाँ कॉपर ऑक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट को यूज़ में लिया हुआ है, तब जाके यहाँ पर एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ है। एक और रिएक्शन देखो यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कराई 475 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बना? साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, CN जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग NaOH जो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कंसनट्रेटेड बेस है, उसकी वजह से 625 केल्विन टेम्परेचर में हाई प्रेशर के साथ में अगर क्लोरोबेंजीन की अगर रिएक्शन कराते हैं हम, तो यहाँ Cl हट जाता है यहाँ से और यहाँ पे आ जाता है OH। तो ये क्या है? फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप सच NO2 एंड साइन। अब देखो यहाँ जो बात लिखी है उसको मैं समझाता हूँ आपको। अगर ये क्यों शो नहीं कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स ये लेस रिएक्टिव क्यों है? देखो क्लोरोबेंजीन की जब हमने ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ी थी, अभी आप बुक में देख के देखना क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, इट्स ऑर्थो पोजिशन एंड मेटा पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, ये दो ऑर्थो हैं और ये वाली पैरा पोजिशन है। यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर क्या था? माइनस चार्ज था। न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर या इसके ऊपर, तो उसको क्या मिलेगा? रिपल्शन मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, उसको रिपल्शन मिलेगा। ये भी एक रीज़न है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कोई ऐसे ग्रुप लगा दें, यहाँ पे मैंने कोई ऐसे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे मैंने कोई ऐसे ग्रुप लगा दिए, जैसे NO2 लगा दिया, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अट्रैक्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। तो पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिविटी आ रही है उसको किसने अट्रैक्ट कर लिया? इन NO2 ने अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ग्रुप जो है ना वो NO2 अटैक कर लेते हैं। NO2 ने इलेक्ट्रॉन्स को अटैक कर लिया। अब बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, देखो क्या बता रखा है इसके अंदर, ये बात यहाँ लिखी हुई है। वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? NO2 हो सकता है, SO3H सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, और एक COOH ओइक एसिड ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये बेंजीन पे प्रेजेंट होंगे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ये ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन प्रेजेंट होंगे, तो ग्रुप क्लोरोबेंजीन इजीली अटैक कर सकता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ कुछ रिएक्शन लिखी हुई है, 3 रिएक्शन लिखेंगे अपन, देखेंगे अभी अपन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है क्लोरोबेंजीन के साथ में। क्लोरोबेंजीन की OH के साथ रिएक्शन हुई, नो रिएक्शन। एक्वस Na सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराई, हाई टेम्परेचर लिया, कोई रिएक्शन नहीं हुई। न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाया न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर। सेकंड रिएक्शन देखो, अब हमने क्या किया? सेकंड रिएक्शन के अंदर ऑर्थो पोजिशन पर एक NO2 ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, तो OH के साथ रिएक्शन कराई तो रिएक्शन हो गई और ये कंपाउंड बन गया। तो NO2 ने क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। सेकंड हमने क्या किया? अभी हमने एक ही NO2 लगाया है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 NO2 लगा दिए इसी के अपन ने, आप लोग बुक में देखते रहना। यहाँ हमने 2 NO2 लगा दिए, एक NO2 यहाँ लगाया, एक NO2 यहाँ लगाया, तो रिएक्शन 370 केल्विन पर हो गई और कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो गई। अब हमने तीनों तरफ क्या लगा दिए? NO2 लगा दिया। आपको देखो, आप तीनों तरफ NO2 लगाया और भी कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ी हमें, है ना। ये है, इसको बोलते हैं
2,4,6 ट्राई क्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, सॉरी, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब ऑर्थो में पहला पोजीशन पर अगर NO2 है, साइनाइड है, सल्फोनिक ग्रुप है, SO3 है या COOH ग्रुप को अगर हम लगाएं तो क्या होगा, इजीली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग हैलोजन डेरिवेटिव्स, कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है बेंजाइल ग्रुप, ये वाला बेंजाइल ग्रुप। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन के अंदर, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो, अगर वो बेंजीन से अटैच डायरेक्ट तो उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। तो अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है बेंजाइल ग्रुप, ठीक है ना, ये वाला जो बेंजाइल ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। उसके बाद शो करता है एराइल हैलाइड और लास्ट में एराइल हैलाइड, जिसके कुछ रीजंस मैंने आपको ऊपर बताए थे अभी। सो मैक्सिमम रिएक्शंस आर शोन बाय बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल हैलाइड, देन एल्काइल हैलाइड RX जिसमें कार्बन की चेन होगी, और फिर एराइल हैलाइड शो करते हैं। ठीक है, ये भी कुछ रिएक्शन देखिए, बेंजाइल हैलाइड के देखो SN1 रिएक्शन दे रखी है। जब Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होगा तो उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन अटैक कर देगा? न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर कार्बन, ये इसकी रेजोनेंस बता रखी है स्ट्रक्चर, उसको स्टेबिलिटी मिलती है। कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? जब ये बनेगा क्यों? बेंजाइल क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्यों? उसका रीज़न है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि थ्रू अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इट्स प्लस चार्ज इज गेट स्टेबलाइज्ड। और इसके बाद में लास्ट में क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ये देखिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ बताया नहीं, इसने रिएक्शन पूरी। हैंस बेंजाइल क्लोराइड इज वेरी मच रिएक्टिव ड्यू टू दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ आपके पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, कौन सा वाला? हेलोएरिन्स का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रियोन्स। ना आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रियोन्स आर पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हेलो एल्केन्स, कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम इज लिंक्ड विद क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर नॉन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, बचपन से आप सुनते आ रहे हो CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, एंड दीज आर नॉन एज फ्रियोन्स। कैसे सिंथेसाइज किया जाए, देखो इनको। Chlorofluorocarbons are synthesized by, if we first reaction is when carbon tetrachloride with HF in the presence of antimonic chloride, CCl3F is CCl3F. This compound is formed here. That is a CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सेकंड रिएक्शन में देखो आप, अगर CCl3F की रिएक्शन इसी कंपाउंड की रिएक्शन अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन फिर से अगर हम यहाँ कराएं, ये हमने कंपाउंड यहाँ पे लिया ना, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम HF से अगर फिर से कराएं उसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CCl2F2। ठीक है, इस तरीके से हम C2Cl6 की रिएक्शन HF से कराएंगे तो C2Cl4F2 का फॉर्मेशन होगा। हम फ्रियोन का फॉर्मेशन इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए फ्रियोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इनकी प्रिपरेशन मेथड्स है ये देट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नोमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रियोन्स। ओके, ये जो फ्रियोन्स का नोमेनक्लेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनको किससे डिनोट किया जाता है? CFC से डिनोट किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। इनका नोमेनक्लेचर जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा अभी, आपने सोचा कि सर ने बताया ही नहीं वाला पॉइंट, कि फ्रियोन 1,1 का मतलब, फ्रियोन 1,2 का मतलब क्या हुआ, या फ्रियोन 1,1,2 का मतलब क्या हुआ। तो ये दैट वन इज अ नोमेनक्लेचर। ओके, देखिए फ्रियोन की नेमिंग करते हैं XY, बहुत अच्छी तरह समझना है इसको। फ्रियोन XYZ से इसकी नेमिंग की जाती है। यहाँ पर XYZ का मीनिंग क्या है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। ये देखिए X का मतलब क्या होता है? फ्रियोन XYZ, X Y और Z। X का मतलब है 1 लेस देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्रियोन मॉलिक्यूल। फ्रियोन मॉलिक्यूल में जितने कार्बन हैं उसमें से आप 1 माइनस कर दो। ठीक है, फॉर्मूले में जो कार्बन लिखे हुए हैं ना उसमें से आपको 1 माइनस करना है। अगर एक ही कार्बन है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। Y का मतलब है 1 मोर देन कार्बन एटम हाइड्रोजन फ्रियोन्स। फ्रियोन के अंदर, फ्रियोन के फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन है उसमें +1 कर दो आप। ठीक है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 0 + 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन फ्रियोन, फ्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट है टोटल, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है आपको। ये है XYZ। अब देखिए फिर से हम ऊपर जाते हैं, आप लोग साथ में बुक लेके बैठना है इसको पढ़ते समय। अब देखो यहाँ पे नोमेनक्लेचर दे रखा है इसका फ्रियोन्स का, है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है CFCl3, ये नेमिंग की हुई है CFCl3। तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 1, तो 1 माइनस 1 किया तो कितना हो गया? 0 हो गया। फिर सेकंड नंबर Y क्या था इसके अंदर? हाइड्रोजन इसके अंदर एक भी नहीं है तो 0 + 1 1 हो गया। Z क्या था? फ्लोरीन की क्वांटिटी, फ्लोरीन 1 है तो 1 हो गया। तो इसका नेम क्या हो गया? CFCl3 का जो फ्रियोन नेम है उसको बोलते हैं फ्रियोन 1,1। यू मे बी राइट हियर फ्रियोन 0,11। 0,11 लिखोगे तो भी सही है, फ्रियोन 1,1 लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, सेकंड देखो CF2Cl2, इसमें क्या आ रहा है? CF2Cl2 के अंदर कार्बन 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, Y मतलब 1,
मतलब कि इसके अंदर हाइड्रोजन 0+1 हो गया और फ्लोरीन की क्वांटिटी 2 हो गई, तो फ्रीऑन 1 2। ऐसे ही फ्रीऑन 1 कैसे हुआ, कार्बन की क्वांटिटी 2 है तो 2 - 1 किया तो ये 1 हो गया। फिर F1 हो गया, सॉरी हाइड्रोजन की क्वांटिटी सब में 1 आएगी क्योंकि हाइड्रोजन किसी में 1 नहीं है, तो 0+1 1 हो जाएगा। और फ्लोरीन एक है तो ये 1 हो गया, तो फ्रीऑन 1 ऐसे ही फ्रीऑन 1 फ्रीऑन 1 इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। फ्रीऑन 1 1 1 की नेमिंग की जाती है इस तरीके से। ओके, अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्लोरीन का क्या हुआ, Cl2 कहीं Cl2 आ रहा है, कहीं Cl5 आ रहा है, Cl4 आ रहा है, इनको क्यों मेंशन नहीं किया इसके अंदर। तो क्लोरीन को मेंशन नहीं किया जाता है, नाम के अंदर Cl क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, बट क्लोरीन की क्वांटिटी पता लगाई जाती है कार्बन की वैलेंसी से, कि अगर एक कार्बन पर एक फ्लोरीन है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो तीन क्लोरीन होगी, एक कार्बन पर 2 फ्लोरीन है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो दो क्लोरीन और आएंगी। इस तरीके से जब आप इनकी बनाओगे स्ट्रक्चर तो उसके अंदर क्लोरीन की क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगी कितनी होगी, बट दीज क्वांटिटी आर नॉट मेंशन हियर, यहाँ उन क्लोरीन की क्वांटिटी को मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन के कुछ यूजेस दे रखे हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरिन्स आर कलरलेस, ये आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, कलरलेस, ऑर्डरलेस, वोलेटाइल लिक्विड, अनरिएक्टिव होते हैं फ्लोरिन्स, दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स एंड फ्रीजर्स में यूज़ किया जाता है। अब तो बहुत कम हो गया इनका यूज़, अब तो हाइड्रोकार्बन गैसेस का यूज़ किया जाता है, बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड ओजोन लेयर। फ्यून्स आर इनवर्ट सोलेंट, फ्यून्स आर यूज रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनर्स, कोल्ड स्टोरेज, फ्यून्स आर यूज एरोसोल प्रोपेलेंट्स के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। अब देखिए आप आगे, एनवायरमेंटल्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और मैक्सिमम इज 90% पार्ट ऑफ द ओजोन इज हार्मफुल बाय दिस CFC कार्बन एटम। ये कुछ लिखे हुए हैं, स्किन कैंसर है, प्लांट डैमेज होते हैं, पॉपुलेशन ऑफ प्लैंकेट डिजीज फाइट ऑन ओशन के अंदर जो ग्रीन प्लांटें होते हैं वो उनका नुकसान पहुंचता है। पॉसिबिलिटी ऑफ आई डिजीज भी इनसे होता है, कॉन्टैक्ट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है, इससे रिड्यूस्ड ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी वो भी इससे रिड्यूस होती है। देट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रीऑन्स। क्लियर, ये देखिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ वाई दी फ्रीऑन्स आर हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल क्यों है, CFC जैसे मान लो हमने कोई सा भी एक CFC ले लिया, CFCl3 ले लिया, UV लाइट की प्रेजेंस में ये अपने आप क्या होता है, डिप्लीट हो जाता है, मतलब कि डिवाइड हो जाता है, और क्या बनाता है, एक Cl फ्री रेडिकल। ये ही सबसे बड़ा रीज़न है, कारण है ओजोन को तोड़ने वाला, ओजोन को तोड़ने के लिए ये बनता है इसके अंदर Cl फ्री रेडिकल। यहाँ से एक Cl निकलती और वो Cl फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, ये देखिए आप ये जो Cl फ्री रेडिकल है ना, यही ओजोन को सबसे पहले आगे जाके तोड़ देता है। ये Cl फ्री रेडिकल है, इसने ओजोन से रिएक्शन की, उसको ClO फ्री रेडिकल में चेंज कर दिया, मतलब क्लोरो मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्सीजन गैस जो है वो हैवी होती है, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, मतलब ओजोन का मॉलिक्यूल टूट गया। अब ये जो ClO- है, इसने एक दूसरे ओजोन से रिएक्शन की और इसने फिर से बनाया एक Cl फ्री रेडिकल, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल बने, वो तो अर्थ में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ओजोन लेयर पर क्या बचा, ओजोन के एक मॉलिक्यूल, ओजोन का दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों एक CFC के एक एटम से ओजोन के 2 मॉलिक्यूल डायरेक्ट टूट गए, और एक मॉलिक्यूल ने क्या बनाया, इसका ये वाला एटम बनाया। दैट मीन्स दिस एटम इज ऑलरेडी दैट मीन्स दिस Cl फ्री रेडिकल इज रेडी टू डिप्लीट दी अनदर ओजोन मॉलिक्यूल। इस तरीके से ओजोन की डिप्लीशन की रिएक्शन होती है। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है DDT, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय DDT। देखिए DDT जो है दैट वन इज़ अ पेस्टिसाइड, है ना। पेस्टिसाइड के रूप में इसको DDT को यूज में लिया जाता है। हम लोग देखें तो हमारे स्ट्रीट में जो नालियाँ बनी हुई है उनके चारों तरफ इसको स्प्रे किया जाता है, फार्मर्स फील्ड में इसका स्प्रे करते हैं। ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था 1942 में, तो बहुत सारे सोल्जर्स जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो बहुत लार्ज स्केल पे बीमारियाँ फैल गई थी। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उस समय उसमें इसका स्प्रे किया गया था, तो बहुत लोगों को बचाया जा सका इससे। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था DDT को, उसके लिए उसके नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बट दैट वन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, है ना। डायरेक्टली अगर ह्यूमन के अंदर ये एंटर करता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। 1970 में अमेरिका में इसको बैन लगा दिया गया DDT को, लेकिन इंडिया में आज भी ये बहुत आराम से यूज़ लिया जा रहा है ना। बट दैट वन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन बींग्स। देखो DDT का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, पहले मैं इसको ये बताता हूँ कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है। पैरा पैरा डाई क्लोरो पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, दैट वन इज इट्स फुल फॉर्म। देखो कैसे बनाया जाता है DDT को। एक कंपाउंड पीछे आया था आपने, है ना, उसका नाम है क्लोरल। ये पीछे आया था CCl3CHO, CCl3CHO, ये पीछे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, आप देखना इसको, है ना। अगर क्लोरल की रिएक्शन कराई जाए
क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में, ये क्लोरोबेंजीन का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये क्लोरल है। तो क्लोरल का तो ऑक्सीजन और क्लोरोबेंजीन के जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ से क्या निकल जाती है, वाटर निकल जाता है। और ये वाटर के निकलने के बाद में ये वाला बॉन्ड इस कार्बन से और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ जाता है, क्योंकि वाटर तो निकल जाएगा। तो देखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये बनती है DDT के स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये CCl3 वाला पार्ट है और इस कार्बन पर एक CH लगा हुआ है। अब इसका नाम पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन कैसे बना, देखो आप, मैं आपको समझाता हूँ। ये बेंजीन की पैरा पोजीशन पे 2 क्लोरीन लगी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक को पैरा नाम दिया, एक को पैरा डैश नाम दिया, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए। ठीक है, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो है ना, दोनों क्लोरीन है, तो ये पैरा पैरा डैश और फिर डाइक्लोरो, फिर डाइफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो डाइफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरो, 3 Cl है ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन की चेन है तो इथेन। फिर से समझना आप लोग, पैरा पोजीशन पर 2 क्लोरीन है, एक का नाम पैरा, एक का नाम पैरा डैश। ठीक है, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो, फिर डाइफिनाइल, बेंजीन की 2 रिंग है, डाइफिनाइल सब्स्टिट्यूट है इसलिए, तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है ट्राइक्लोरो और इथेन, कार्बन की 2 कार्बन की एक चेन है तो उसको बोलते हैं इथेन। पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज IUPAC नेम। ओके, ये DDT का हो गया। अब हमने 11th में भी टॉपिक पढ़ा था और हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं इसको, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हाउ कैन वी फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एग्जाम में ध्यान रखना बेंजीन कि अगर ये आता है कि हाउ कैन यू फॉर्म BHC तो उसके साथ में दूसरे नाम भी आ सकते हैं। अनदर नेम ऑफ BHC, इट हैज़ मेनी कमर्शियल नेम सच एज गैमेक्सिन, लिंडेन, 666, इट्स IUPAC नेम इज़ 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसको कैसे बनाया जाता है, देखो, अगर बेंजीन की रिएक्शन 3Cl2 से कराई जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, UV लाइट की प्रेजेंस में, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये पहुँच जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है और हर कार्बन पर एक एक Cl लग जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं आ रही है, देखो यहाँ पर रिंग नहीं है, तो भी इसका नाम हेक्साक्लोरोबेंजीन होता है या बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, क्योंकि ये बेंजीन से बनती है इसलिए। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो आप, C6H6Cl6, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम और है इट्स मैनी, अच्छा बहुत सारे आइसोमर मिलते हैं, वो ये बता रहा है गामा आइसोमर जो मोस्ट रिएक्टिव होता है फॉर इंसेक्टिसाइड्स के लिए। ठीक है, और ये एनवायरमेंट के DDT और BHC के हार्मफुल इफेक्ट है, ये आप अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ चैप्टर ये पूरा होता है। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको हमको कंप्लीट करना होगा। ओके।